Hello, dear viewers. I welcome you all to your own YouTube channel Prep Up, and this is Aisha. The topic that we are going to discuss today is inclusive education, यानी कि समावेश शिक्षा, सबके लिए सामान्य शिक्षा, right? So let's see what all things we are going to discuss today. So the things that we are going to discuss today is inclusive education. Inclusive education होता क्या है? इसके goals क्या हैं? इसके objectives क्या है? Target groups in inclusive education, and at the end we are going to do a follow-up exercise, right? So let's see. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है सबके लिए एक जैसी शिक्षा, राइट? Irrespective of their caste, creed, color, physical appearance, okay, physical status. There are many children who are with learning disabilities, learning. There are children with special needs, right? There are children from backward classes, from scheduled castes, scheduled tribes. So inclusive education means education for all under one roof, right? So that's what I have written here. You can see here on the slide that inclusive education means all children in the same classroom, in the same school. It means real learning opportunities for groups who have traditionally been excluded, right? There are children who are from minorities. So all basically it means to mainstream the एजुकेशन सिस्टम, राइट? तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इट्स कम्प्लीटली अ न्यू अप्रोच, राइट? ऑल स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, ओके, दे आर इसको माना है सबने, हमारे एजुकेशनिस्ट ने, हमारी स्कूल सिस्टम्स ने। तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यू पॉलिसी, ओके। And as per UNICEF, right, United Nations International Children's Emergency Fund, what does it say? Inclusive education allows students of all backgrounds to learn and grow side by side to the benefit of all. Right? So this is something, right, which is going to benefit all children. Okay, irrespective of their, as I mentioned, irrespective of their physical appearance, caste, creed, color, status, economic status, social status, and everything. So अब हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन से बच्चे इंक्लूड होते हैं। लाइक आई मेंशन इन द फर्स्ट स्लाइड, टारगेट ग्रुप्स। तो किन ग्रुप्स को टारगेट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जिन बच्चों में डिसेबिलिटीज हैं। By disabilities, I do not mean physical, they are physically challenged, right? By disabilities, I also mean learning disabilities, because हमने देखा है कि children with learning disabilities, right? There are different kinds of learning disabilities, right? There are children who are, who have dyslexia. There are children who have dysgraphia. There are children who have dyscalculia. I'm sure that if you are preparing for KBS, CTET, you must be well acquainted with all these terms, right? Dyscalculia क्या होता है, dyslexia क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है। मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सारी चीज़ें, जो सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको मैं अलग अलग से डिफाइन करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको याद रहे। तो फॉर नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आते हैं, जिसमें डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, बहुत तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं। तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ओके, लर्निंग डिसेबिलिटीज, और देर आर ऑल्सो चिल्ड्रन हु आर फिजिकली चैलेंज्ड, राइट? नाउ children with special needs, right? There are some children, okay, who need special care. For example, children who have autism, right? Children with Down syndrome, children with epilepsy, children with neurological disorders, right? So all these children, कोई भी स्कूल इन बच्चों को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है, ओके? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो क्लास है, उसमें वेरिड लर्नर्स होते हैं अब in after inclusive education, right? As I said, that every school has already adopted to this new kind of approach, wherein you will see a different set of learners, डिफरेंट सेट ऑफ लर्नर्स होंगे, ओके? आपकी क्लास में बच्चे होंगे जो गिफ्टेड होंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, जिनका IQ लेवल सुपर्ब होगा। एट द सेम टाइम देयर विल बी चिल्ड्रन फ्रॉम एवरेज, बिलो एवरेज, एंड देयर विल बी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑल्सो। यू कैन नॉट डिनाई, एज अ टीचर यू कैन नॉट से दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच देम। नो, आपको उनको भी पढ़ाना है,
right? You need to scale down your your lesson plan to their level, okay, with the help of special teacher. Okay, you both can coordinate and you can sort out कि उनके लिए क्या क्या उनकी क्या क्या needs है और आप उनको कैसे पढ़ा सकते हैं, right? तो children with special needs, as I said कि children with by special needs, I have given you examples like epilepsy, autism, Down syndrome, neurological orders, right? So all these children come under this category, special needs category. And then moving on to socially disadvantaged children. Now, socially disadvantaged children क्या होते हैं? So learners in our society, we can see there are some children who have been abandoned by their families. Okay, जिनको अपनी families बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं लावारिस, तो वो इसमें आ जाते हैं. There are many children who are in orphanages, children from orphanages. There are many children who are जिनके सिंगल पेरेंट्स होते हैं, राइट? तो वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, right? So socially disadvantaged children. So there are many children who have become victims of some natural tragedy. By natural tragedy I mean the natural calamities. After that they have lost their parents, तो वो कहाँ जाएंगे? So they are also included in this category, socially disadvantaged children, right? Now moving on to deprived and backward categories. Deprived and backward categories. By deprived I mean children who are from backward classes, right? Children from rural areas, children from minority, children from scheduled caste, children from scheduled tribes, right? So all those children come in this category. तो आप देख सकते हैं कि ये सारे इन सारे ग्रुप्स को टारगेट करता है. बेसिकली इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ बिग अम्ब्रेला, राइट? ये एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंदर सारे बच्चे आते हैं. ओके, तो वो अम्ब्रेला ये है जो आप देख सकते हो कि इस स्लाइड पे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद सोशली डिसएडवांटेज्ड category, children with deprived and backward categories. Okay, so till here we have understood. Now moving on to, when you talk about inclusive education, you cannot skip the national policy on education. What does it say? Right? So the national policy on education, see the topics that I am going to discuss today, they are really very important from examination point of view. एग्जाम में इससे क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. देयर कैन बी क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, देयर कैन बी क्वेश्चन फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन. तो प्लीज़ आप ध्यान से सुने और आप नोट भी कर सकते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. लाइक डेट्स आर आस्क्ड, like different things can be asked from this the slides or the topics that we are going to discuss today. तो जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, साथ ही में हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी डिस्कस करते हैं. सो it came into existence in 1986 and it was adopted by the Parliament of India. The concept of national system of education implies that it's education for all, like we have already discussed. Caste, creed, location or sex has nothing to do with it. Okay, it also says that there should be special provisions made for students who are from backward classes, who have special needs. So basically बच्चे को चेंज नहीं होना है, सिस्टम को चेंज होना है. हमें सिस्टम को चेंज करना है बच्चे के हिसाब से, राइट? एक इस पे एक और टॉपिक आता है कि डिफरेंशिएशन. आजकल के क्लासरूम्स में डिफरेंशिएशन है जो कि अलग से ऑल टुगेदर एक टॉपिक है जो मैं कमिंग डेज में उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगी, राइट? So, government will initiate appropriately funded programs. So many funded programs have already been initiated, like midday meals, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है स्कीम्स, प्रोग्राम्स ऑलरेडी इनिशिएट किए हैं ताकि हम मेन स्ट्रीमिंग ला सके हमारी एजुकेशन सिस्टम में, राइट? कोई भी बायस ना हो, कोई भी प्रेजुडिस ना हो. The new policy will lay emphasis on the removal of disparities. Let me tell you कि ये जो national policy on education है, it came into existence in 1986. ओके, इसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स भी लाई गई, इसमें कुछ बदलाव भी लाए गए. लाइक आर प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव, ओके, इन ईयर 1992,
प्लीज रिमेंबर कि इसमें थोड़ी चेंज लाई गई, राइट. एंड देन अगेन इन year 2005, Mr. Manmohan Singh, he brought some change to it, right? So from time to time इसमें थोड़ी amendments की गई, but the basic structure is same. जो basic एक चीज़ है वो same है, the national policy on education, right? So it stresses on mainstreaming, it stresses on changing the education system rather than changing a child, right? So this is what it is. Now moving on to Persons with Disability Act. 1995. It came into existence in 1995. When we talk about inclusive education, उसमें हमने बहुत सारी कैटेगरीज मतलब बहुत सारी कैटेगरीज देखी कि बच्चों की कौन कौन सी कैटेगरीज को ये टारगेट करता है. नाउ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जब आप नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन डिस्कस करते हो, जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्कस करते हो, आप इसको exclude नहीं कर सकते हो. Persons with Disability Act, right? It came into existence in year 1995, right? Now इसके अंदर कौन कौन सी let me tell you कि एक person को disable, okay, declare करने के लिए कम से कम उसमें मतलब 40% वो disable होना चाहिए, right? तो इसमें क्या क्या पहले इसमें 7 disabilities थी, राइट. इन 1995 जब ये बना, इसमें 7 ही डिसेबिलिटीज थी, जो कि ब्लाइंडनेस थी, लो विजन, लेप्रेसी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन था, मेंटल इलनेस था. तो ये 7 तरह की डिसेबिलिटीज इसमें थी, बट इसको रिवाइज किया गया इन ईयर 2016. ओके, प्लीज रिमेंबर इन ईयर 2016, ओके, इसको रिवाइज किया गया. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, रिवाइज्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट. सो RPWD, रिवाइज्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, right? So it was revised in year 2016. And dear learners, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले तो ये 7 थी, लेकिन the numbers increased to 21. तो 7 से 21 किया गया इसको, जब इसको रिवाइज किया गया. तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई. तो इसमें जो चीज़ें ऐड की गई वो आप देख सकते हैं. सेरिब्रल पैल्सी है, ड्वार्फिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, हार्ड ऑफ हेयरिंग, पर्सन्स विद हार्ड ऑफ हेयरिंग, राइट. स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया, राइट. ADHD, एपिलेप्सी, लॉट ऑफ थिंग्स. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म के भी बहुत तरह के स्पेक्ट्रम, इन द सेंस कि ऑटिज्म के भी अपने कुछ सब टाइप्स हैं, ठीक है. तो दैट्स व्हाई स्पेक्ट्रम हैज बीन यूज्ड हियर. Chronic neurological disorders such as multiple sclerosis, Parkinson's disease, blood disorders such as hemophilia, thalassemia, sickle cell anemia and multiple disabilities. तो आपको ये सारा याद रखना पड़ेगा. एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है इसमें से कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया, इसमें इनिशियली कितनी डिसेबिलिटीज थी, फिर इसमें कितना, ये रिवाइज कब किया गया, किस ईयर में किया गया, राइट. फिर इसमें कि क्या चेंज आई, तो कितने नंबर्स, ओके, 7 से 21 क्या क्या इसमें एडिशन हुआ. तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, राइट. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड. नाउ देयर इज अ स्मॉल फॉलो अप एक्सरसाइज. मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इतने सारे मैंने आज इसमें फ्यू क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी मैं आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस करना, फॉर एग्जांपल हमने ये टॉपिक डिस्कस किया तो फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे इसके बाद हर एक वीडियो में, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी उसके साथ फॉलो अप क्वेश्चंस भी होंगे. तो आज मैंने फ्यू भी क्वेश्चंस बनाए आप लोगों के लिए, बट इन माय नेक्स्ट वीडियो, okay, this is the part 1, okay, part 1 of inclusive education. This is part 1. part 2 में मैं और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, राइट, बिकॉज आई डोंट थिंक दीज आर इनफ. ओके, सो इन माय नेक्स्ट वीडियो हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. जब आपके पास 30-40 क्वेश्चंस होंगे तो आपकी क्लैरिटी एक कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर हो जाएगी, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगी, आप इन योर माइंड, राइट. सो एज वी आर नॉट लाइव, अगर हम लाइव होते तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते 1 by 1 और मैं आपके आंसर्स का वेट करती, आपको टाइम देती सोचने के लिए. But here while I'm discussing these things with you, आप in your mind you can think about the answers. आप guess कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि क्या इसका आंसर
होगा। इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें रियल क्लासरूम सिचुएशंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमने आज डिस्कस किया इसके रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस हैं। ओके, so the first question is, which of the following situations is illustrative of a child centered classroom? तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जो हम कहते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स चिल्ड्रन from all categories. So when we say children from all categories, so in that scenario एक child centered classroom कैसा होगा, उसकी example कैसी होगी? So the first option is a class in which the teacher dictates and the students are asked to memorize the notes, right? A class in which पहला ऑप्शन एज कि पहला ऑप्शन मैं हिंदी में भी इसका ये इसको ट्रांसलेट करूंगी। क्या ऐसा क्लास एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लास वो क्लास होती है जो कि बिल्कुल बच्चे पे फोकस करे, राइट? तो क्या वो क्लास ऐसी होगी जिसमें टीचर एक डिक्टेटर है, टीचर बस बोले जा रहा है और स्टूडेंट्स बस नोट्स बनाए जा रहे हैं, जो कि पुराने जमाने में होता था एक ट्रेडिशनल क्लासरूम। Second option, a class in which the textbook is the only resource the teacher refers to. Okay, क्या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें बस टीचर के पास एक टेक्स्ट बुक है और वो उसी से बच्चों को पढ़ा रहा है? Third option, a class in which the students are sitting in groups and the teacher takes turns to go to each group. Okay, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि क्या वो एक ऐसी क्लास है जिसमें टीचर बच्चों को सेग्रीगेट करती है ग्रुप्स में, इनके बहुत सारे ग्रुप्स बनाती है और ही मेक श्योर कि वो हर एक बच्चे के पास जाए, देखें कि हर कोई ग्रुप कैसा कर रहा है। और डी ऑप्शन, अ क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्न्ड बाय द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स द टीचर वुड गिव, या एक ऐसी क्लास जिसमें बच्चे का बिहेवियर गवर्न होता है बाय रिवॉर्ड्स, बच्चे का बिहेवियर आपको मतलब उभर के आता है किस चीज़ से, आप उसको कभी चॉकलेट दोगे, रिवॉर्ड्स दोगे, या उसको कभी पनिशमेंट दोगे, मार पिटाई होगी। आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर अपने माइंड में। स्टिल आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स थिंक। आई एम श्योर कि बाय नाउ आपने सोचा होगा। यस, यू आर करेक्ट, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एक ऐसी क्लासरूम होगी जिसमें टीचर ग्रुप्स बनाएंगी, जिसमें बच्चे ओनरशिप लेंगे, बच्चों को टीचर बस एक फैसिलिटेटर होगा, वो बच्चों को फैसिलिटेट करेगा, उनको बच्चों को बच्चे खुद अपने ग्रुप्स बनाए, नो प्रॉब्लम। ओके, वो अपने खुद ग्रुप्स बनाए या टीचर उनकी थोड़ी हेल्प करे। ओके, फिर बच्चे ऑनरशिप, दे शुड टेक द ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, बच्चे खुद ओके दे मस्ट बिल्ड दोज लीडरशिप क्वालिटीज, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज होना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements best describes inclusion? Okay, so when we talk about inclusive classroom, तो inclusion जो है उसकी best, उसके लिए which of the following is the best statement, तो इस इनमें से कौन सी statement उसको best suit करेगी inclusion को? So the first option is, it's the belief that children need to be segregated according to their abilities. तो by inclusive education ये कहती है कि आप बच्चों को अलग अलग उनके ग्रुप्स बनाओ, उनको सेग्रीगेट करो अलग अलग उनके एबिलिटीज के हिसाब से। सेकेंड ऑप्शन, इट इज द बिलीव दैट सम चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न एट ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि कुछ बच्चे सीख ही नहीं सकते, तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनको वैसे ही रहने दो जैसे वो है। थर्ड ऑप्शन, इट्स अ फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम, ये एक ऐसी फिलॉसफी है। तीसरा ऑप्शन, ये एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा अप्रोच है जो कहता है कि हर कोई बच्चे को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स हैं उनके, और इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम, यानी कि बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल्स रखें नहीं, एक रेगुलर स्कूल में इन सब बच्चों को इक्वल राइट्स मिले। तो थर्ड ऑप्शन है, इट इज द फिलॉसफी दैट स्पेशल चिल्ड्रन आर अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड। तो ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है वो गॉड की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है, राइट? So please think in your mind and just guess the answer. I'm giving you some time to ponder over it, to think about it.
So by now I'm sure कि आपने guess लगा लिया होगा, and you are right. The option C is the correct answer. It is a philosophy that all children have a right to get equal education in a regular system, school system. So this is what is meant by inclusive education, right? Now moving on to third question. To cater to the children from disadvantaged background, a teacher should. जो बच्चे, तो क्वेश्चन ये कहता है कि वो बच्चे जो डिसएडवांटेज्ड और बैकग्राउंड ग्रुप से आते हैं, टीचर को उनके लिए क्या करना चाहिए, राइट? हाउ कैन शी और ही केटर टू देम? ओके, सो द ऑप्शन ए, गिव देम अ लॉट ऑफ रिटन वर्क, भाई उनको लिखने के लिए बहुत सारा काम दो. सेकेंड ऑप्शन, ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास. उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करें, लाइक वो कहाँ से आए हैं, क्या है, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, राइट? वो कहाँ, किस बैकग्राउंड से आए हैं, और उनको इन्वॉल्व करो क्लासरूम डिस्कशंस में, राइट? एंड थर्ड ऑप्शन इज मेक देम सिट सेपरेटली इन द क्लास. उनको अपनी क्लास में एक अलग साइड बिठा के रखो, ठीक है? क्लास में अलग से बिठा के रखो. जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनके साथ बैठने मत दो, उनको अलग बिठा के रखो. फोर्थ ऑप्शन, इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स. उनको कंप्लीटली एज अ टीचर उनको कंप्लीटली इग्नोर करो, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के साथ बातचीत नहीं कर सकते, राइट? तो ये चार ऑप्शंस हैं. आप प्लीज आप सोचिए, थिंक इन योर माइंड व्हिच वन कैन बी द आंसर. Yes, you are right. Option B, try to find out more about them. As a teacher, it's your moral responsibility, and it is your responsibility to know more about them. Okay, like उनकी एक केस स्टडी करना कि वो कहाँ से आए हैं, राइट? उनको कौन सी तरह की प्रॉब्लम्स हैं. एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए टू ब्रिज दोज गैप्स, राइट? आपको उनको क्लास में इन्वॉल्व करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, a child who can see partially, okay, एक बच्चा जो जिसकी थोड़ी रोशनी है, मैं नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल कंप्लीटली ब्लाइंड है, जिसकी थोड़ी रोशनी है. ए ऑप्शन, शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल विद सो नो स्पेशल प्रोविजंस. उसको हमें एक रेगुलर स्कूल में डालना चाहिए, लेकिन जहाँ पे उसके लिए कुछ खास प्रोविजंस ना किए गए हों. सेकंड ऑप्शन, should not be given education since it is not of any use to him. उसको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, उसकी क्योंकि उसकी रोशनी तो पूरी है नहीं, उसको पढ़ाओ ही मत, क्योंकि उसके किसी काम की नहीं है. सी ऑप्शन, needs to be put in a separate institution. उसको किसी अलग ब्लाइंड स्कूल में भेज दो, ठीक है? डी ऑप्शन, should be put in a regular school while making special provisions. उसको एक रेगुलर स्कूल में ही डालें विद स्पेशल, वहाँ पे उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, उसके लिए उसकी नीड के हिसाब से उसको टीचर्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, टीचिंग एड्स मिले, या सब कुछ मिले. तो आप गेस कीजिए कि क्या, गेस नहीं, यू शुड बी श्योर कि क्या आंसर होगा. Yeah, it's option D. Should be put in regular school while making special provisions. And this one talks about inclusive education, right? So moving on to next question. Yeah. Most of the classrooms in India are multilingual, and this needs to be seen by a teacher. हमारी class, and when we see that in our India, so in India we see that are different. There are different. Every state is different from the other, right? Every region is different from the other. So यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म है. अगर आप एक क्लासरूम लोगे, फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में कोई नॉर्थ इंडिया से होगा, कोई साउथ इंडिया से होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट से होगा, कोई नॉर्थ वेस्ट से होगा, तो अलग अलग जगहों से जब बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म वहाँ पे हो जाता है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी उनकी रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं, राइट? तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एक टीचर के लिए क्या है? अ बॉदर, एक परेशानी की बात है. अ प्रॉब्लम, अगेन, ठीक है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है. ऑप्शन बी. ऑप्शन सी, अ रिसोर्स है, एक अच्छी बात है जिसको वो यूटिलाइज कर सकती है. ओके. ऑप्शन डी, एन ऑब्स्टैकल, एक रुकावट है. अच्छे से सोचिए कि क्या मल्टीलिंगुअलिज्म टीचर के लिए लाभदायक हो सकता है. अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है.
So I'm sure by now you must have chosen option C as your answer, because of course multilingualism is a resource for teacher. How it can be a resource for teacher? Because बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, राइट? एक बच्चा दूसरे बच्चे से उसकी लैंग्वेज के बारे में सीख सकता है, उसके कल्चर के बारे में सीख सकता है, उसके ट्रेडिशंस के बारे में सीख सकता है, उनके रहन सहन, खान पान, सब इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकता है. तो there can be a knowledge exchange, right? So of course it's a resource for a teacher, right? Now moving on to next question. Inclusive education, okay, includes teachers from marginalized groups, celebrates diversity in the classroom, includes indoctrination of facts, and creates strict admission procedures. So inclusive education क्या है? Out of these four, which one do you think suits the best for inclusive education? Yeah. So the correct answer is option B. Inclusive education celebrates diversity in the classroom. Okay, diversity. That means children from different faiths, children from different castes, children from different regions, even from different countries. Okay, so that is inclusive education. Diversity. और हमारा इंडिया जो है इसमें तो आप देख ही सकते हो कितनी डाइवर्सिटी है. देयर आर डाइवर्सिटीज इन एवरीथिंग, लैंग्वेज, customs, traditions, food, the kind of clothes we wear. There is a lot of diversity. So that is inclusive education. And not only that, diversity in the sense of, as I already told you, different categories of children, right? So that's also included in this. Now question number 8. Learning disabilities in mathematics can be assessed most appropriately by which of the following tests? तो मैथ्स में लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन बी असेस्ड. आप कैसे उनको असेस कर सकते हो? अगर किसी बच्चे में रिलेटेड टू मैथ्स अगर उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको आप कैसे असेस कर सकते हो? इनमें से कौन सा मेथड आप अपनाओगे जिसकी वजह से आप उसको असेस करोगे? सो द ऑप्शन इज स्क्रीनिंग टेस्ट, बी इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, सी इज एप्टीट्यूड टेस्ट, डी इज अचीवमेंट टेस्ट. Think of the answer, please. Yes. If your answer is option B, then you are absolutely correct. Diagnostic test. अगर कहीं पे भी लर्निंग गैप्स हैं, चाहे वो नॉट ओनली मैथमेटिक्स, वेदर इट बी एनी सब्जेक्ट, एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए मैथमेटिक्स, बट इट अप्लाइज टू एवरी सब्जेक्ट. जब आपको असेस करना है लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग गैप्स, तो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट ही करना पड़ेगा. बिकॉज जब तक आप देखिए, जैसे एक डॉक्टर डायग्नोसिस करता है एक पेशेंट का कि हाँ इसको क्या चाहिए, इसमें किस चीज़ की कमी है, किसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है, वो उस प्रॉब्लम को हम करेक्ट कैसे करें. लाइक वाइज टीचर भी ऐसे ही करता है, वो डायग्नोसिस करता है. ओके, तो डायग्नोसिस के बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि हाँ जी इस बच्चे में क्या कमी है, मैं इस गैप को कैसे फिल करूं, राइट? सो इट्स कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक टेस्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन. ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन की सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है? सो द फर्स्ट थिंग इज कम्युनिटी सपोर्ट. Second option is attitudinal change among teachers. Third option is high quality teaching learning materials. Option D is high quality textbooks. Right? एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चंस देता है एग्जाम में जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता लगेगा कि नहीं ये तो सारी सही है या इनमें से 2-3 मेरे को सही लग ही रहे. इन दैट केस आपको ना फर्स्ट देखना है कि पहली प्रायोरिटी पे कौन किसको रखोगे आप. तो आप यहाँ पे देखो कि पहली प्रायोरिटी पे आप किसको रखोगे. कम्युनिटी सपोर्ट, क्या ये चीज़ है प्राइमरी थिंग जो चाहिए? सो द आंसर हियर इज attitudinal change among teachers. Inclusive education, parents are not going to take care of inclusive education. Inclusive education is something which the school system faces, which a teacher faces in the classroom on day to day
बेसिस। तो उसके हिसाब से एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स ही इसका आंसर होना चाहिए, राइट? सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ teacher's attitude has to be changed. Okay, she needs to change or he needs to change his attitude or her attitude towards this new approach, right? A lot of differentiation, class में differentiation होनी चाहिए, right? she ताकि उसको अपने lessons, आपके अपने methods इस तरह से डिज़ाइन करने हैं ताकि जो हमारे क्लास में जो ये डाइवर्सिटी है, ओके, ये इसके साथ हम जस्टिस कर सकें। Now the next question, the last question is, a disability may be present in which of the following? इनमें से आपको क्या लगता है कि डिसेबिलिटी है? ठीक है, पहला ऑप्शन मोबिलिटी, परसेप्शन और मेमोरी, बी कॉन्टिनेंस, डेक्सटेरिटी और फिजिकल कोऑर्डिनेशन, थर्ड स्पीच, हेयरिंग और आईसाइट, डी ऑल ऑफ द अबव। If your answer is option D, you are absolutely correct. इन जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, ओके, इनमें से किसी में से भी कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। मेमोरी रिलेटेड हो सकती है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहेंगे, ओके, उसके रिलेटेड हो सकता है। मोबिलिटी, लोकोमोटर प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक सेंसरी प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्टिनेंस हो सकता है, कॉन्टिनेंस मीन्स जिसमें बॉबल मूवमेंट्स या मोशंस उस पर कंट्रोल नहीं है बच्चे का, तो वो भी एक तरह की डिसेबिलिटी हुई। ओके, डेक्सटेरिटी, वो अपने हाथ, फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो उसमें प्रॉब्लम है। स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हेयरिंग और आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ओके। तो ये सारी जो है ये डिसेबिलिटीज काउंट होंगी। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। So that's all for today. So I'm gonna be making one more video related to this, right? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट बी भी होगा, पार्ट सेकंड भी होगा। आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन पार्ट कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बस हम हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मे बी मोर क्वेश्चंस, तो वो आपको ना हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा फ़ायदा है आपको, ठीक है? तो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोना क्रैक ऑल दीज एग्जाम्स, ओके? एंड वन मोर थिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके रिलेटेड जितना भी डेटा आपके पास है तो प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़े। बाकी क्वेश्चंस तो मैं करा ही लूँगी क्योंकि मैं इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके सामने, नॉट ऑल, जितने भी मेरे से हो पाएगा, ओके, जितने भी मेरे से हो पाएगा मैं उसके रिलेटेड आपसे डिस्कस करूँगी। आप प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके? थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।